हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजी बर्ड। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ देयर इज़ अ टॉपिक इन द क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 sexual reproduction in flowering plant, and the topic, very interesting topic which comes in the exam and asked frequently, pollen pistil interaction. So we will study about that topic in very easy way. I hope that I could clear your all doubt. Let's make biology very easy. I'm Mrs. Bhavna here to teach you biology in a very good way, in the very easy way. So let's start the topic. The name of the topic is pollen pistil interaction. So let's try to understand the topic. There is a word given, pollen, and another one is pistil. Let's describe the pollen. So जो pollen होता है बेटा, pollen it is also called as the male gametophyte, as well as female is called as the, this is called, pistil is called as the, pistil is called as the female gametophyte. So first of all, let me clear about the topic that why we are going the another name to the pollen male gametophyte and to the pistil female gametophyte. So first of all, let's study the, let's understand what do you mean by the gametophyte. The gametophyte is the structure which bears the gametes that carry the gametes. So as we know well, the pollen is having the structure like this, is having two walls. It is having two coverings. A pollen is having two coverings. Outer covering is called as the exine and internal is called as the intine. Exine, the outermost covering of the pollen, is made up of what? It is made up of very hard cellulose as well as pectin. And the internal one is its plasma membrane. It works like a plasma membrane. So this outermost is little bit tough, and inner wall, inner covering of a pollen grain is very soft. The outer covering of a pollen grain की जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, इसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग वे में एक वाटर रेसिस्टेंट केमिकल का जो है वो डिपोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. The deposition of this water resistant chemical is called as the sporopollenin. इस केमिकल का नाम क्या है जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक वाटर रेसिस्टेंट केमिकल की कवरिंग बना रहा है जो कि एक्साइन के ऊपर होता है. इस केमिकल को हम नाम देते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो कि होता है एक वाटर रेसिस्टेंट केमिकल. और कायदे की बात ये होगी बेटा कि दिस इज एन इट इज़ ए ऑर्गेनिक केमिकल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बना है बेटा. मीन्स बॉडी मीन्स कि प्लांट की बॉडी के अंदर बन रहा है, तो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो दिस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल. ओके, इंटरनल एक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन की देखी जाए तो बेटा एक इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और दो छोटे न्यूक्लियस होते हैं. रेयरली, लेकिन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, एंड ऑल दीज 3 न्यूक्लियस are called as the cell. What the different names are given, these all, these are given name. The larger one, large nucleus is given name vegetative cell, vegetative cell, and the smaller one, the छोटे मेल, जो छोटे छोटे दो न्यूक्लियस होते हैं, those are called as the generative nucleus, या और फिर generative cell. आपने यहाँ पे समझा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है एक पोलन ग्रेन के अंदर आपके पास 2 न्यूक्लियस हैं. एक आपके पास है वेजिटेटिव सेल, 2 आपके पास है जनरेटिव सेल.
जनरेटिव सेल्स आर नथिंग बट दी मेल गैमीट। तो आपको बता दे बेटा कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर वाले पोलन ग्रेन्स जो है वो शेड होते हैं। रिमेनिंग 40% के अंदर हो सकता है ये सिर्फ एक ही मेल गैमेट बने, बट आफ्टर द शेडिंग, आफ्टर द पॉलिनेशन, उनके अंदर एक मेल गैमेट 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स डिफाइन द अनदर थिंग अबाउट द पिस्टल। पिस्टल को हमने फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहा? वाई वी आर कॉलिंग पिस्टल इज अ फीमेल गैमेटोफाइट? तो देखिए बेटा, पिस्टल की हम स्ट्रक्चर समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पिस्टल इज लाइक a neck-like structure, a tubular structure is having, and a crown-like structure, and the base is swollen structure, right? The upper crown-like structure is called stigma, as you know well, क्योंकि आप 6th class से इस बारे में स्टडी करते आ रहे बेटा. This was not difficult for you all. And this one is called style, and last one, the swollen part of that is called as the ovary. Okay, so there are the 3 parts in a pistil. As the point is, why we are calling pistil a female gametophyte? Female gametophyte means a pistil is having female gamete. Then where it is? It is inside the ovule. And where is the ovule? As you know well that a pistil having numerous ovule, various ovules. I'm just going to discuss about one. There are more than one new ovules are found in an ovary. It may be or maybe not. Both possibilities are here. Maybe a ovary is having only one ovule. May it having more than one ovule. So let's discuss if there is only one ovule. If there is only one ovule, inside that ovule a structure is found that is called embryo sac. Let me give that name also. That one in green color, what it was? Ovule. So देखिए बेटा, ovary, sorry, हमने क्या देखा कि एक ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, एक या एक से ज़्यादा. ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम बोलते हैं एग सेल, और एग सेल इज नथिंग अ फीमेल गैमीट. तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास पिस्टल के अंदर इंटरनली हम जाते हैं. इफ वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर अबाउट पिस्टल, फाइनली अंदर जाते जाते हमें एक फीमेल गैमेट मिला. दैट इज वाई टू द पिस्टल वी आर कॉलिंग एज द फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, नाउ लेट्स फोकस on the structure of embryo sac, how the embryo sac is positioned in a ovule, how the pollen pistil interaction take place. तो first of all देखिए, अगर मान लीजिए ये पोलन ग्रेन पॉलिनेट हो चुका है तो आफ्टर पॉलिनेशन ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे. देन लैंडिंग के बाद में पोलन की कंडीशन ये रहेगी. दिस इज द कंडीशन ऑफ पोलन. ओके, एंड इट हैज लैंडेड ओवर स्टिग्मा. स्टिग्मा के लिए ये अपने पास इसके पास जो 2 मेल गैमेट है, पोलन के पास जो 2 मेल गैमेट है, एक वेजिटेटिव सेल है, 2 मेल गैमेट है, 3 सेल स्ट्रक्चर है, तीनों किस तरीके से एक एग सेल के पास पहुंचती है, यहाँ एग सेल है, कैसे एक एग सेल के पास पहुंचती है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहली बात तो ये कि एक स्टिग्मा जिसके पास ये पोलन ग्रेन आ चुका है
वो क्या हर किसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी? तो सबसे पहले पर जो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक स्टिग्मा जिसके पास पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है उसी के स्पीशीज का, और यार ये हाथ से गिर गया, नाउ अब यहां पे हम देखते हैं कि जब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुका है और अपने मेल गैमेट्स को उसको फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाना है, ऐसी कंडीशन में क्या एक स्टिग्मा जो कि किसी स्पीशीज की है, क्या वो किसी अनदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर वो अपने ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है? इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है वर्ड कंपैटिबिलिटी, another word is incompatibility। हम इन दो वर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस टॉपिक्स। कंपैटिबिलिटी मीन्स प्रॉपर मैचिंग। इफ देयर इज द इंटरेक्शन ऑफ पोलन एंड पिस्टिल, and both are of same species, then we call that pollen and pistil are compatible. They showing compatibility. They are compatible. They are perfect match for each other. They are made for each other. ठीक है। और अगर इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है, जैसे कि दिस इज द अपोजिट वर्ड, आप समझ ही गए होंगे कि जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है और दोनों स्पीशीज, अगर बोथ स्पीशीज आर डिफरेंट, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। और इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन में कभी भी पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट व्हाट, कि जब भी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, अगर इनकी जाति बिरादरी में डिफरेंस होगा, अगर इनकी स्पीशीज में डिफरेंस होगा, ऐसी कंडीशन में कभी भी मेल और फीमेल आपस में शादी करने के लिए नहीं मानने वाले, क्योंकि इनके घर वाले भी नहीं मानने वाले। और क्यों नहीं मानने वाले? क्योंकि इनमें जाति बिरादरी का डिफरेंस है, मीन्स कि इनमें स्पीशीज का डिफरेंस है। तो इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट पॉसिबल बिटवीन दिस बोथ, ओनली सेम कास्ट मैरिज इज अलाउड। सो हम समझ जाते हैं कि एक पोलन ग्रेन पिस्टिल के एग सेल से ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइज होता है जब उसमें क्या मिलती हो? कंपैटिबिलिटी मिलती हो। अब हम थोड़ा सा एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर देखते हैं एंड फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे एक पिस्टिल है, पिस्टिल का ओवरी है, ठीक है। तो बोर्ड पे ही इतनी सारा बनाना की ज़रूरत नहीं होती है। अंदर चलते हैं हम ओव्यूल के पास में। तो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आई एम मेकिंग एन एनलार्ज स्ट्रक्चर। तो इनिशियली क्या होता है बेटा? ओव्यूल इज कवर्ड बाय द टू लेयर। बोथ लेयर्स are called what? Integuments. What we call those? Integuments. 1 and 2 coverings are covering the ovule. Those coverings are called ovule wall or the integuments. Ovule wall. These are 2 in number. आगे हम देखें तो जो हम क्या, क्योंकि हम किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं? हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओव्यूल के इंटरनली अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स का
ग्रुप होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और दिखने में सारी एक ही जैसी होती हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल कि जो ओव्यूल का इंटरनल जो टिश्यू होता है ये एक तरीके का होमोजीनस टिश्यू होता है। होमोजीनस टिश्यू मीन्स सारी सेल्स एक ही जैसी हैं दिखने में, इसीलिए इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इफ दीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर, इन दैट कंडीशन ऑल द सेल्स आर लुकिंग इक्वल इन शेप. In that condition we call those cells are homogeneous, making a homogeneous tissue because there is a group of cell and the group of cell is always called as the tissue. And ऐसे टिश्यू को जो कि ओव्यूल के अंदर है हम उसको एक नाम देते हैं जिसका कि नाम है न्यूसेलस. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूसेलस समझेंगे तो काम आएगा आगे. हमारे न्यूसेलस से ही हम चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज द होमोजेनस टिश्यू, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड न्यूसेलस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. आगे हम बढ़ते हैं. ये है एक इनिशियल, एक इमैच्योर ओव्यूल की कंडीशन. इफ अ ओव्यूल इज इमैच्योर, अगर हम इस ओव्यूल की प्लोइडी की बात करें, अगर हम इस ओव्यूल की प्लोइडी की बात करें ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अभी तक उसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हुआ है, इन दैट कंडीशन इट इज डिप्लॉइड. इट इज शोइंग प्लोइडी, दैट इज डिप्लॉइड. अभी तक ये डिप्लॉइड कंडीशन में अवेलेबल है. अभी इसमें एग सेल का, उससे पहले एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. अब क्या होगा जब इसको मैच्योर होने का टाइम आएगा, व्हेन द ओव्यूल एंटर्स इन द फेज ऑफ मैच्योरेशन. जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योर होने की कंडीशन में इसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, न्यूसेलस की कोई एक सेल जो है वो साइज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होने लगेगी. डिफरेंशिएट होने लगेगी क्योंकि वो सेल अभी तक कैसी है, डिप्लॉइड है. तो न्यूसेलस की जो एक सेल है, न्यूसेलस की जो सेल है उसमें डिफरेंशिएशन होने लगता है, वो साइज में लार्ज हो जाती है. तो अभी सबसे पहले क्या हुआ है इसमें, डिफरेंशिएशन. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देती हूँ. तो आई एम गोना राइट हियर लाइक, यहाँ पे हो गया है डिफरेंशिएशन हो गया है. आई होप इट इज लुकिंग प्रॉपरली टू यू ऑल. अब जब यह डिफरेंशिएशन इसमें हो चुका है, ऐसी कंडीशन में जो सेल होती है वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती है साइज में, लार्ज इन साइज. ठीक है, जो सेल होती है वो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका. अभी तक इसकी प्लोइडी कौन सी है, अभी तक इसकी प्लोइडी क्या है, अभी तक इसकी प्लोइडी चल रही है, स्टिल सेल इज डिप्लॉइड. ऑल द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस इज डिप्लॉइड यार. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो सेल है इसके अंदर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा. मियोसिस डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि हमें एक गैमेट बनाना है और गैमेट बनाने के लिए हमेशा मियोसिस होता है, क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड सेल डिवीजन हमेशा मियोसिस के थ्रू प्रोसीड होता है. तो हमने देखा कि हम मियोसिस डिवीजन करते हैं और मियोसिस डिवीजन में भी हम सबसे पहले करते हैं मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट जब होता है ऐसी कंडीशन में दो सेल बनती हैं, राइट. जब मियोसिस फर्स्ट होता है ऐसी कंडीशन में आपके पास दो सेल बनती हैं. अब ये यहीं नहीं रुकता, अभी मियोसिस सेकंड होना बाकी है, मियोसिस सेकंड होना अभी बाकी है. अब होता है मियोसिस सेकंड. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि अभी हो रहा है मियोसिस सेकंड. और जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहीं पे ये डिवाइड होकर के
4 सेल्स बना लेते हैं। नाउ क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो चुका है बनने वाली, ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड, all the cells are haploid in ploidy. Now what the name is given to these all cells? The name of to the all these cells is megasporophyte. Sorry, what the name is given to these 4 cells? The name these 4 cells are given मेगास्पोर. व्हाट डू वी कॉल दैट? मेगास्पोर. जिसमें 3 मेगास्पोर जो होती हैं, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट्स, जिनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट होती है. ओनली 1 मेगास्पोर जो होती है वो सरवाइव करती है. इसीलिए जब पिस्टिल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, एक ओव्यूल के अंदर बनने वाले 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 मेगास्पोर ही परसिस्ट करता है और बाकी के 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल से ओनली 1 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो अभी जो मैंने अपनी नाम लिया आपसे, मेगास्पोर मदर सेल, व्हाट दिस? न्यूसेलस की जो सेल डिफरेंशिएट हुई है और लार्ज सेल में कन्वर्ट हुई है, और उस लार्ज सेल को हम क्या नाम देते हैं? इस लार्ज सेल का नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई डू वी कॉल इट मेगास्पोर मदर सेल? बिकॉज शी इज अ मदर, शी इज गोइंग टू give a birth, she is going to give birth to 4 megaspore. She is a mother, she is participating for the meiosis division, that is why she is called as the mother of megaspore. So पहली बात तो ये कि हम एक फीमेल गैमेट जो बनाने वाला गैमेटोफाइट होता है, हम उसको मेगा वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? Cause the size of a spore or the gamete bearing in the female is always larger in size. जो साइज जो होता है गैमेट्स का, जो साइज होता है जो उनके ऑर्गन्स का, मीन्स स्ट्रक्चर का, फीमेल स्ट्रक्चर्स का, दैट इज ऑलवेज लार्जर इन साइज. दैट इज वाई वी कॉल देम मेगास्पोर. ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल्स, 1 मेगास्पोर मदर सेल इज ओनली प्रोड्यूसिंग 1 मेगास्पोर. लेकिन अगर माइक्रो मीन्स की पॉलन ग्रेन के कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज ए माइक्रोस्पोर इन अनदर वर्ड. तो अगर माइक्रोस्पोर की बात की जाए तो फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो कि अगर देर आर 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड 10 मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आपको 10 दे दी जाए माइक्रोस्पोर मदर सेल और आपको 10 दे दी जाए मेगा स्पोर मदर सेल, तो बताइए इनसे कितने माइक्रोस्पोर और कितने मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा? और क्वेश्चन का आंसर होगा 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 40 तो बनेंगे माइक्रोस्पोर. ठीक है, 40 तो बनेंगे माइक्रोस्पोर. इंटरेस्टिंगली, ओके, 40 बनेंगे माइक्रोस्पोर एंड 10 मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे 10 मेगास्पोर. ऐसा क्यों हुआ? 30 आर डीजेनरेटेड. ऑलराइट, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर in your own mind, and the ploidy of this megaspore is, as I told earlier, that is haploid. अब हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं पोलन पिस्टिल इंस्ट्रक्शन पे. अब हम समझेंगे कि एक मेगास्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है, मेगास्पोर यू लुकिंग, if you are looking inside the ovule, megaspore is given another word that is called as the embryo sac. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एम्ब्रियो सैक को आप बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड, इस एम्ब्रियो सैक इज बेसिकली कॉल्ड एज दी फीमेल गैमेटोफाइट
गैमेटोफाइट, हम इसी को फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे। ओके, तो अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स की एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि एक मेगास्पोर के डिफरेंशिएशन से बन रही है। तो हम आ गए हैं एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर पे, है ना। अब हम देख लेते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर न्यूसेलस वाला एरिया पूरा गायब कर दिया जाए ना, तो ये इंटेग्यूमेंट एक जो मेगास्पोर साइज में बड़ा होता जाता है ना, जो मेगास्पोर बना था ना, वो मेगास्पोर साइज में बड़ा बड़ा होता चला जाएगा, और पूरा जैसे मान लीजिए कि अगर वो ओव्यूल के साइज़ का हो गया है, तो वो इंटेग्यूमेंट आपको बेसिकली वहाँ पे अटैच दिखाई देगी, किस पे, एम्ब्रियो सैक पे दिखाई देगी अटैच होके। तो हम एक एम्ब्रियो सैक का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, तो दिस इज़ द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि एम्ब्रियो सैक का एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रॉपर्ली अटैच नहीं होते हैं। नीचे क्या था, ओव्यूल पे, ओव्यूल में आपने देखा था ना, दिस इज द ओव्यूल, तो ये तो था स्टॉक, राइट। इट विल कलर, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फ्यूनिकल, राइट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्यूनिकल, ठीक है। तो यहाँ वाले एरिया पे जो है वो इंटेग्यूमेंट नहीं आ रहे होते, राइट। तो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होता है काइंड ऑफ पोर, राइट। और मान लीजिए न्यूसेलस हटा दे और हम खाली यहाँ पे दिखाई दे देते हैं कि इंटेग्यूमेंट डायरेक्टली जो एक एम्ब्रियो सैक से अटैच हो गए हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल थी, उसने अपना साइज एनलार्ज कर लिया है। नाउ इट हैज़ बिकम अ मेगास्पोर, सॉरी, इट हैज़ बिकम अ एम्ब्रियो सैक। स्टिल इट इज़ इमेच्योर एम्ब्रियो सैक में आपको दिखेगा ओनली वन न्यूक्लियस। यू आर लुकिंग ओनली वन न्यूक्लियस इन अ मेगास्पोर, एक मेगास्पोर, सॉरी, इन एन एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एक एम्ब्रियो सैक इमैच्योर होता है, जब एक एम्ब्रियो सैक इमैच्योर कंडीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर जो है माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, 3 बार माइटोसिस होता है। जब ये माइटोसिस डिवीजन एम्ब्रियो सैक में हो रहा था, ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो सैक का सेल्यूलर डिवीजन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे होता है ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस। अगर मैं रफली यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ कैरियोकाइनेसिस कैसे, कि यह एक सेल थी एम्ब्रियो सैक की, माइटोसिस फर्स्ट होता है, सेल एक ही रह जाती है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अच्छा, ये एक न्यूक्लियस एक पोल पे, अनदर न्यूक्लियस सेकंड पोल पर होता है। अच्छा, ये जो इंटेग्यूमेंट की वजह से जो लाइन छूट गई, जो एक पोर जैसे स्ट्रक्चर छूट गई थी, हम इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ये एक पोर के जैसी हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होती है, जिसको कि हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो हमें एक पोर के जैसे स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल दिखाई दे रही होती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इनका नाम बता ही चुकी हूँ, ये है इंटेग्यूमेंट्स, ओके। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये दोनों कवरिंग जो हैं, दीज बोथ कवरिंग्स आर इंटेग्यूमेंट्स। ये है जो इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पे पूरी कवरिंग नहीं देता, जो एरिया अभी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है, एक पोर के जैसे दिखाई देता है आपको, तो हमने इसको बोल दिया कि दिस पोर इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं इसी में माइटोसिस समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो बेसिकली इमेच्योर कंडीशन में ओनली 1 न्यूक्लियस है, जब ये मैच्योरेशन फेज की तरफ बढ़ता है तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन भी शुरू हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो माइटोसिस फर्स्ट हुआ, फॉर एग्जांपल दिस इज द माइटोसिस फर्स्ट हुआ, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है। तब जब 2 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है, तो एक तो आपको दिखाई दे रहा होता है कि एक न्यूक्लियस तो आपको दिखाई दे रहा है कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, दूसरा जो अनदर पोल है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी एग्जाम, जो एक एंड है वो उसको हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। तो दूसरे एंड को क्या बोलते हैं हम, दूसरे एंड को नाम देते हैं चैलेजा। तो दिस इज द चैलेजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, हम इस तरीके से नाम देते हैं, दिस पोर्शन माइक्रोपाइल, दिस इज चैलेजा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे फिर से माइटोसिस होना शुरू हो जाता है सेकेंड टाइम। फिर से जब सेकेंड टाइम माइटोसिस होता है, तो यू नो वेल अबाउट दिस कि जब सेकेंड टाइम माइटोसिस होगा, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाले न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये अगर बेसिकली हम इसको देखते हैं
तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है, देयर आर टू न्यूक्लियस एंड दिस पोल इज ऑल्सो हैविंग द टू न्यूक्लियस। दो माइक्रोपाइल की तरफ न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो जो है चैलेंजर एंड की तरफ जो है न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। नाउ द थर्ड टाइम इज देयर फॉर द माइटोसिस, एंड माइटोसिस जब थर्ड टाइम होता है, नाउ टू न्यूक्लियस विल डिवाइड इन 4 एंड अनदर 2 विल डिवाइड अगेन इन द 4। आपने क्या देखा कि इमेच्योर, एक इमेच्योर जो आपने एक एम्ब्रियो सैक देखा था उसमें से सिंगल न्यूक्लियस था, और देखिए किस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है। 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होता है, फाइनली यहाँ पे 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये रहेगा कि जब भी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होगा, यहाँ पे कभी भी कोई भी वॉल जो है इन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं बनेगी, मीन्स दीज विल फील यू लाइक अ नेकेड। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जब बन जाती है, नाउ द सेल्यूलर डिवीजन स्टार्ट्स। सेल्यूलर डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो अब यहाँ पे कंडीशन आपको कैसे दिखाई देने वाली है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब इसी को एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको यहाँ एनलार्ज करके बता रही हूँ, है ना, आई एम एनलार्जिंग इट हियर, ओके। ये वाली स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता रही हूँ, ओके। तो अब आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियस, है ना, एक न्यूक्लियस दोनों तरफ से सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। दोनों पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इधर भी 3 न्यूक्लियस बचते हैं और इधर भी 3 न्यूक्लियस बचते हैं। तो देखिए माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस बच रहे हैं, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपको 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक काफ़ी लार्ज साइज का बन जाता है और 2 आपको साइड के अंदर जो है वो सेल्स दिखाई देंगी। इन साइड वाली सेल के अंदर जैसे ऐसे कुछ डिजाइनिंग जैसा कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर जो होती है वो फिल होती है ऐसे, ओके। आई होप यू आर गेटिंग वेल अबाउट माई टॉपिक। इन comment section you can ask any question related that topic if you having any query, okay। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको, जो रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस यहाँ पे बचे हैं इस पोल की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ जो बचे हैं, उनमें से जो रेड कलर का ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द लार्जर वन एंड द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सेल विच इज कॉल्ड एज द एग सेल। हमने इसी को बोल दिया एग सेल। और इसकी जो सखियाँ सहेलियाँ जो इसके दोनों तरफ इसकी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है इसको, इसकी हेल्प करने के लिए इसको दोनों तरफ से एक दासियों की तरह इसके चारों तरफ दोनों की तरफ जो दोनों तरफ खड़ी हैं, इनको हम बेसिकली नाम देते हैं सिनर्जिड सेल। व्हाट वी कॉल दोस सेल्स, सिनर्जिड सेल हम इनको नाम देते हैं। आते हैं दूसरी तरफ, मतलब चेले जायंट की तरफ आते हैं। चेले जायंट में जो रिमेनिंग 3 सेल्स है, क्योंकि एक तो सेंटर की तरफ माइग्रेट हो चुकी है एंड द रिमेनिंग 3 सेल्स आर नाउ कॉल्ड एज द, इसको ग्रीन से बना देते हैं, remaining 3 cells also this nucleus got covered by the cell, right, cell membrane, and now these are become 3 cells toward the chalazial end. What these 3 cells are called? These 3 cells are called antipodal cells. Remember the thing, how many number of these cells are here? 3 number of the cells of antipodal cells are found toward the end of the chalaza, okay। and the micropial end की तरफ आपने देखा कि एक तो है एग सेल और दो हैं यहाँ पे सिनर्जिड सेल, all right। I hope you are getting my point. Now remaining one nucleus which are migrating from both of the end and mating to and moving toward the सेंटर। तो एक न्यूक्लियस दोनों ही एंड से आता है, माइग्रेट होता है एंड सेंटर की तरफ मूव करता है, और सेंटर में जैसे ही आता है वहाँ पर 2 न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सिंगल कवरिंग बन जाती है, ओके। सो 2 न्यूक्लियस है, नेकेड न्यूक्लियस है, और उनके चारों तरफ एक सिंगल कवरिंग बन जाती है। अब देखिए इस सेल्स को क्या नाम देते हैं, इस सेल को जो सेंट्रल सेल्स है ना, आप चाहो तो इसको सेंट्रल सेल भी लिख सकते हो। सेंट्रल सेल वैसे बेसिकली दिस इज द पॉपुलर बाय द नेम दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। वैसे सेंट्रल सेल के नाम से इसको कोई नहीं जानता है, राइट, मीन्स कोई नहीं जानता, मीन्स का ये है कि बेसिकली जो फ्रीक्वेंटली जब ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए फ्रीक्वेंटली एक वर्ड जो यूज होता है दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, ओके।
ये जो पोलर न्यूक्लियाई आप यहाँ पे देख रहे हो, पोलर सेल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कंडीशन क्या है n+n, लेकिन सेल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 1। एक सेल के अंदर आपने देखा कि कंडीशन प्लोइडी है n+n, ठीक है। यहाँ पे एक सेल की आपने जो प्लोइडी देखी, एक सेल की प्लोइडी आप यहाँ पे देख रहे हो n, क्योंकि बेटा एक मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ है, सो प्लोइडी इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, ओनली दैट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम। तो प्लोइडी कभी भी चेंज नहीं होगी, जो मेगास्पोर थी वही एम्ब्रियोसेक में डेवलप हो रही है। तो अगर मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियोसेक भी हैप्लॉइड रहेगी, और उसमें बनने वाले सारे के सारे जो न्यूक्लियस होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। इसीलिए यहाँ पे प्लॉइडी हम सभी की लिख लेंगे हैप्लॉइड। यहाँ पे सिनर्जिड सेट के बारे में भी हम चाहे तो लिख सकते हैं हैप्लॉइड, एंड दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mature embryo sac. This is the structure of mature embryo sac. अब इस mature embryo sac के साथ में अब एक pollen grain किस तरह से इंटरेक्ट करेगा उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात पूछी जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड वो बता देते हैं कि एक अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्ब्रियो सेक को डिफाइन कैसे करो, क्योंकि एम्ब्रियो एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक की सेल्यूलर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियर मतलब कंडीशन क्या होती है और सेल्यूलर कंडीशन क्या होती है। तो बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट इज कि एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर आप टोटल काउंट कीजिए हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर। एज वी नो 8 न्यूक्लियस आर हेयर, सो टोटल न्यूक्लियस होते हैं 8 न्यूक्लियस, ओके। और आपने देखा सेल्स टोटल कितनी है 3 and 3 6 and 1 7, टोटल सेल्स आर 7, है ना। ये तो अजीब सी बात हो गई। यस, बट दिस इज ट्रू कि एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देंगे 8 एंड सेल्स दिखाई देंगे 7। इसीलिए एंड बेटा इसीलिए एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक को हम कहते हैं 7 celled and 8 nucleated। मैच्योर एम्ब्रियो से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होती है। ये बेटा आपको बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है और बोला जा सकता है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, प्रूव करो। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट बताना होगा कि कैसे ये पूरा का पूरा जो है मेगास्पोर से शुरू हुआ था सिलसिला और किस तरीके से ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए, तभी आप इस बात को अपने लैंग्वेज में प्रूव कर पाएंगे। अब देखते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के इंट्रैक्शन कैसे हुआ। ये जो एग सेल आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग सेल के साथ में पोलन ग्रेन का फ्यूजन कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगी इसके बाद ताकि मुझे समझाने में थोड़ा सा ईजी हो सके। आई विल मेक दिस डायग्राम अगेन। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं दिस इज द आई थिंक स्टिग्मा, आई शुड ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं स्टिग्मा पे स्टाइल बना लेती हूँ एंड देन ओवरी, ओके। आई थिंक I don't know whether the structure is perfect or not. I'm trying to do my best. Okay. Now, pollen grain has shedded here. Pollen grain has shedded here, having that sporopollenin. जैसे कि आपने पहले देखा था कि भाई ये था एक pollen grain, okay? Pollen grain जो था यहाँ पे आपने स्पोरोपोलेनिन देखा यहाँ पे, लेकिन हमने एक चीज़ जो नोटिस की यहाँ पे कि जो स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे ये डिपॉजिट है, बीच बीच में यहाँ पे गैप भी है ना, यहाँ पे गैप भी है। तो ये गैप वाला एरिया क्या है, ये गैप वाला एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। दिस एरिया
कि क्या स्पोरोपॉलिन जो होता है इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली डिपॉजिटेड ऑन द एग्जाइम बट इज हैविंग सम पेट्स एंड रिमेनिंग पोर्शन, दैट रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड एज अ जर्म पोर। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जर्म पोर होता है यही पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, कि जब पॉलन और पिस्टल के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो पॉलन एक ट्यूब बनाता है ताकि अपने बने हुए मेल गैमेट को पिस्टल के पास में पहुंचा सके, क्योंकि पिस्टल के पास में क्या है, एग सेल है, और उस एग सेल से अपने मेल गैमेट को फ्यूज़ करवा सके। इसीलिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जो कि बनेगा जर्म पोर से। तो ये जर्म पोर वाला एरिया क्या करता है, इस तरीके से इंटाइन वाला एरिया, क्योंकि देखिए अंदर दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल है, तो वो जो वेजिटेटिव सेल है कि वो प्रेशर डालेगी इंटाइन के ऊपर। तो ये जब इंटाइन पे प्रेशर आएगा तो इंटाइन जो है वो आउटग्रोथ लेने लगेगी, इस तरीके से आउटग्रोथ लेने लगेगी, और फाइनली जाकर के ना, और कौन से रीजन से आउटग्रोथ लेगी, जिस एरिया में क्या होगा, जर्म पोर होगा। तो जिस एरिया में जर्म पोर होगा उस एरिया की तरफ जो है पॉलन ट्यूब का जो है वो फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके इंटाइन ने आउट फोल्डिंगली और प्रेशर लगाया एग्जाइन के ऊपर जहाँ पे स्पोरोपॉलिन का डिपोजिशन नहीं था। अब ये जर्म पोर ने एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बना ली, जिसको कि हम नाम दे देते हैं जर्म ट्यूब। और यही जर्म ट्यूब जो होती है कब धीरे धीरे पॉलन ट्यूब में चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हम बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि जैसे ही एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो उसने भाई बनाया क्यों, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया ही क्यों, ये आउटग्रोथ स्टार्ट क्यों होती है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन के लिए जानने वाली बात ये होगी कि जब स्टिग्मा को पता लगता है, कि जब स्टिग्मा को पता चलता है कि दिस पॉलन ग्रेन इज कंपैटिबल फॉर मी, ये मेरे ही जाति बिरादरी का है ना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं, ये तो हमारी सेम कास्ट मैरिज पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसी कंडीशन में स्टिग्मा जो होता है वो एक सिक्रेशन सीक्रेट करता है, और उस सिक्रेशन में होता क्या है, उस सिक्रेशन के अंदर होता है बोरोन, कैल्शियम, आइनोसिटोल, शुगर। और ये शुगर कौन सी होती है बेटा, सुक्रोज शुगर इसके अंदर होती है। दिस इज अ केमिकल, ट्रू केमिकल, दिस इज अ ट्रूली केमिकल, बोरोन, कैल्शियम, आइनोसिटोल, शुगर। जो शुगर होती है दैट इज शुगर, सुक्रोज, फ्रक्टोज भी यहाँ पे होती है, आई थिंक फ्रक्टोज भी यहाँ पे हो सकती है। सुक्रोज और फ्रक्टोज केमिकल जो शुगर होती है वो यहाँ पे सीक्रेट होती है। फ्रक्टोज शुगर का यहाँ पे काम क्या होगा, फ्रक्टोज शुगर यहाँ पे एक तरह से एनर्जी प्रोवाइडर हो गए, या फिर आप समझ लो कि फूड सोर्स हो गया, है ना, फूड सोर्स हो गया, तो कि जो कि डेवलप होने वाले पॉलन ट्यूब को एक तरह से एनर्जी और फूड प्रोवाइड कर सकें। कार्बन और बोरोन का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, तभी ऐसी कंडीशन में ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पॉसिबल है। जो पॉलन ट्यूब है अब वो किस तरीके से डेवलप होती है, जैसे कि जब ये केमिकल एक स्टिग्मा सीक्रेट करेगी तो इस स्टिग्मा के सीक्रेशन की वजह से जब इस इंटाइन और एक्साइन तक न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये मेल गैमेट में से वेजिटेटिव न्यूक्लियस सबसे पहले लीडर बन जाता है ना, वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल देख रहे थे आप, वो लीडर बन जाता है और वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब में लीड रोल प्ले करता है, लीड करता है पॉलन ट्यूब को, क्योंकि साइज में बड़ा होता है, वो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। तो पॉलन ट्यूब में लीड रोल प्ले कर रहा होता है वेजिटेटिव, तो आगे आगे वेजिटेटिव सेल, पीछे पीछे दोनों मेल गैमीट उसको फॉलो करते हैं। तो मतलब वेजिटेटिव सेल यहाँ पे कौन बन गया है, इट हैज़ मेड गाइड, ये इनका गाइड है जो पॉलन ट्यूब बनाने में भी हेल्प कर रहा है और इनको गाइड भी कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है और तू आगे आगे और मैं पीछे पीछे, काइंड ऑफ दैट। तो मेल गैमेट आर फॉलोइंग दैट वेजिटेटिव सेल। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे अगर ये पॉलन ट्यूब बन चुका है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बन चुका है, तो आई थिंक आई शुड मेक इट फ्रॉम द रेड वन, सो मैं रेड से बना देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो है वो वेजिटेटिव
सेल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और पीछे इसके दोनों कौन है, मेल गैमीट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एम्ब्रियो से इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो उसके अंदर किस तरीके से, मान लो यहाँ पे ओव्यूल है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, तो आई एम नॉट मेकिंग दैट डायग्राम, ओके, आई एम जस्ट गोना मेक द डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये एम्ब्रियो सेक। अच्छा, एम्ब्रियो सेक का जो माइक्रोपाइलर पोल होगा ना, वो डाउन साइड फेस करता है। ओके, थोड़ा सा मेरे को इस तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखाना, दैट इज वाई। ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा कि जो एम्ब्रियो सेक में जो माइक्रोपाइलर पोल होता है ना, माइक्रोपाइल, दिस वन इज दी माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल होता है ना, इट इज फेसिंग डाउन साइड। ओके, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, सो दिस इज माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल। ओके, दिस इज द शैलोजल पोर्शन, दिस इज द शैलोजल पोर्शन। यहाँ पे है, आपने देखा 3 है, एंटीपोडल सेल्स। ओके, तीनों है एंटीपोडल सेल्स। सेंटर में है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, वही पहले वाली स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये है पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे है ये एग सेल, ये थी एग सेल जो एक्चुअली फीमेल गैमीट है। यहाँ पे इसकी सखियाँ, इसकी सहेलियाँ, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर अंदर मैं भर देती हूँ। शायद मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको बताना पड़ेगा। ये जो आप इंटरनल ऐसे ब्रांच जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है बेसिकली, है ना, ये सिनर्जिड सेल के अंदर ये है बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है गाइडिंग ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, तो अभी हम आगे पहले प्रोसीड करते हैं। तो वही देखिए, अब ये मान लीजिए पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो किए जा रहा है ना। तो वैसे तो बेसिकली होलो होती है स्टिग्मा, अगर होलो नहीं है, इफ़ इट इज़ अ सॉलिड, ठीक है, वैसे तो होलो होती है क्योंकि बताया मैंने, अगर होलो नहीं हो तो थोड़ी बहुत भी सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या करता है कि पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कि यहाँ पे जो भी कोई बीच में जो बैरियर आ रही होती है सेल्स की, उनको जो होता है डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही है और इसकी एंट्री इस दरवाजे से, इस डोर से, इस गेट से, मेन गेट या माइक्रोपाइल इधर से पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे पोलन ट्यूब को बनाया एंड पोलन ट्यूब को मैंने यहाँ तक ले करके शो कर देती हूँ कि दिस इज द पोलन ट्यूब। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग वेल। अब ये चलते चलते महाशय यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को, है ना, इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको आगे फॉलो करके दिखा देती हूँ कि अब आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे कैसे दिख रही होगी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वो है ये वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, और पीछे पीछे कौन चल रहे थे, पीछे पीछे थे 2 मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल थी वो तो हो जाती है डीजेनरेट। कौन हो जाते हैं, वेजिटेटिव जो सेल होती है वो तो डीजेनरेट हो जाती है। जो मेल गैमेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों जो मेल गैमेट्स हैं, दे फॉल इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। वो सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर के फॉल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिसअपियर कर देती हूँ, डिसअपियर हो गई है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, और मेल गैमेट पहुँच जाते हैं यहाँ साइटोप्लाज्म में। ओके, यहाँ पे पहुँच चुके हैं साइटोप्लाज्म में। अब आगे क्या होगा,
साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है, और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम अभी अभी मैंने आपको बताया था, इट गाइड बोथ मेल गैमीट, किसको किधर जाना है, आपको भाई साहब इधर जाना है, मेल गैमेट को गाइड करती है। कैसे? ये सिनर्जिड सेल के अंदर प्रेजेंट जो फिलीफॉर्म एपरेटस होती हैं वो जो है वो एक मेल गैमीट को भेज देते हैं एग सेल के पास में, ओके। और दूसरे जो मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट जो होता है ना, जो सेकंड मेल गैमेट होता है उसको भेज देती है पोलर न्यूक्लियाई के पास में। आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है, प्राइमरी मेल गैमेट जो होता है, प्राइमरी मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द एग सेल। किसने मूव करवाया? सिनर्जिड सेल ने बोला गो टुवर्ड द एग सेल, जिसमें से सिर्फ एक मेल गैमेट जाता है एग सेल की तरफ, ठीक है। ये एग सेल आपने देखा हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने सेकंड पोजीशन देखा, जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है, इट मूव्स टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। आफ्टर ऑल होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक मेल गैमेट यहाँ से आ चुका है यहाँ पे, और दूसरा मेल गैमेट जा चुका है इधर, ठीक है। एक मेल गैमेट इधर आ चुका है, दूसरा जो एग सेल के पास में, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास जा चुका है। तो आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी मेल गैमेट, और रेड से शो किया एग सेल को, तो मैं लिख देती हूँ एग सेल, दोनों का क्या होगा? दोनों का होगा फ्यूजन, दोनों का होगा फ्यूजन, ओके। और जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन से बनेगा क्या? डिप्लॉयड जाइगोट, ओके। एंड सेकेंडरी क्या होगा? जो सेकेंडरी मेल गैमेट होगा, सेकेंडरी मेल गैमेट जो होगा वो इसको ग्रीन ब्लैक से ही बना देते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, ओके, फ्यूजन करेगा। यहाँ पे थोड़ा प्लोइडी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लोइडी मेल गैमेट की दोनों की है एन, एग सेल की प्लोइडी एन, पोलर न्यूक्लियाई की n+n, यही थी। फ्यूजन के बाद में जब मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? एज अ रिजल्ट बनता है PEN, जो कि होता है 3n। इसकी प्लोइडी होती है ट्रिप्लोइड। फ्यूजन के बाद में जब एक मेल गैमेट दूसरे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे प्लोइडी बन जाते हैं, ट्रिप्लॉइड प्लोइडी आ जाती है, और बनने वाली सेल का नाम होता है PEN। PEN का मतलब क्या होता है? PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडो स्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है, जब पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन इन अनदर वर्ड आल्सो कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन आपने यहाँ पे देखा। जब पॉलन और पिस्टल के बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन होगा 2 बार, डुअल टाइम फर्टिलाइजेशन होगा, और जो है स्ट्रक्चर जो बन गई है वो बन गई है ट्रिपल। एक सेल क्योंकि ट्रिपलॉइड बन रहे तो इसको हम एक स्पेशलाइजेशन इसका करते हैं और बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो जब पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में
स्पेशल इवेंट होता है, और वो स्पेशल इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पेशल इवेंट आपने देखा वो क्या हो रहा था? स्पेशल इवेंट था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन 12th क्लास एग्जाम्स की, सीबीएसई के एग्ज़ाम में, आरबीएसई के एग्ज़ाम में, सभी बच्चों के लिए कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ बच्चों को ये इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट trust me, this is not a very difficult topic. If you will visualize all those terms now, it will help you to learn more easily and frequently. So I hope आपको जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, you can ask queries in comment box. Thank you. Good day.